आइए हरियाणा से आगे हम अब केरल की ओर चल रहे हैं। वलिकवु आश्रम माता अमृता आनंदमयी जी, उनके सानिध्य में जाते हैं। मैं माता जी को यहां से प्रणाम करता हूं। मुझे हमेशा आपका स्नेह मिला है, आपके आशीर्वाद मिले हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान को आपने हर प्रकार से एक नई ताकत दी है। आज मेरा सौभाग्य है कि आपने समय निकाला और ये सितंबर महीना आपके जन्मतिथि का भी महीना है और इसलिए मैं इसके लिए भी आपको प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। നമസ്കാരം. സ്വച്ഛ ഭാരതിലൂടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന സംഭാഷണങ്ങളിലൊന്നായി എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അങ്ങയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ആഹ്വാനം എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാത്തരം ആളുകളിൽ ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, അതുപോലെ തന്നെ പരിസരവൃത്തി, ശുചിത്വം, ജലസംഭരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മഠം സ്ഥിരമായി ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യുകയും ഈ കർമ്മപദ്ധതികളെല്ലാം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന്, ശരിയായ ശൗചാലയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അമ്മയ്ക്കും അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ പൂജയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, രാത്രിയിൽ പോകുന്ന ശൗചാലയമില്ല, അടുത്ത പറമ്പിൽ പോകണം. ആ ഉച്ചതൊട്ട് രാത്രി വരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ഇപ്പം ഇതൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, സ്ത്രീയുടെ ഒരു സുരക്ഷയുടെ കാര്യം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് 101 ഗ്രാമങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ എല്ലായിടത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ശൗചാലയങ്ങൾ പണിയുകയും മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് അവരിൽ സ്വന്തമായി ജീവിക്കാനൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ബാത്റൂമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ പലയിടത്ത് 10,000-ഓളം ബാത്റൂം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നു. വേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള മാർഗം കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന പാടെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വേസ്റ്റിന് ഒരു ഭാഗമാണ്. എത്രയായിരം ടൺ കോടിയാണ് അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴനാരുകൊണ്ട് ആ ഒരു അശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു 8,000 ബീപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ വെച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് 600 കിലോമീറ്ററാണ്, 300 ബീപ്പ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് 8,000 ബീപ്പ വെച്ചിട്ട് 4,000 സൈക്കിൾ കൊടുത്ത് 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ പോയി എടുത്താൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക, അപ്പോൾ വ്യായാമം കിട്ടും, മലിനങ്ങൾ പെട്രോൾ വേസ്റ്റ് കളയണ്ട. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി നട്ട് വിഷമില്ലാത്ത കളയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ വെച്ച് കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. തെരുവിടങ്ങൾ വെച്ച് നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു അവയർനെസ് വരാൻ. ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചസാര കഴിച്ച ഷുഗർ കൂടും. അപ്പോൾ അവയർനെസ് കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ച് കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാനും പറ്റും. രോഗങ്ങൾ മലിനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ മലിനം നിന്നാണ് കൊതുകിൽ എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. കൊതുകിൽ എലിപ്പനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തിവെച്ചിട്ട് ആ മറ്റുള്ള പുതിയ കൊതുകുകളെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സേവന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിൽ സമയത്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് മുമ്പ് പറയും. माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो अम्मा आपको स्वच्छ भारत के महत्वपूर्ण विषय को दैनंदिन वार्तालाप में अग्र स्थान पर उठाने के लिए बधाई देना चाहती है। आपके इस आह्वान ने प्रत्येक नागरिक के दिल को छू लिया है और इस अभियान को देश के हर एक व्यक्ति से अपूर्व समर्थन मिला है। माता अमृतानंदमयी मठ प्रकृति के रक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जल संरक्षण से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने और परियोजनाएं लागू करने की दिशा में प्रतिबद्ध एवं सक्रिय रहा है। इसी वर्ष 1,700 अभियान मठ के ओर से चलाए जा चुके हैं। माता अमृतानंदमयी मठ ने भी स्वच्छ भारत कोष में 100 करोड़ रुपयों का योगदान भी दिया है। गाँवों में महिलाओं को शौचालयों के अभाव के कारण बहुत समस्या होती है।
ये केवल उनकी मर्यादा का ही नहीं बल्कि सुरक्षा का विषय भी है। कई वर्ष पहले की एक घटना अम्मा को याद आती है। अम्मा को एक घर में पूजा के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां पहुंचने पर पता चला कि उस घर में शौचालय नहीं था और महिलाओं को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था। उस दिन अम्मा को दोपहर से रात होने तक अपने पर नियंत्रण रखना पड़ा। अम्मा जानती हैं कि उसकी पीड़ा कितनी है। मठ ने पूरे भारत में 101 गांवों को गोद लिया है। हमने इन गांवों में न केवल शौचालयों का निर्माण किया है बल्कि उन गांवों की महिलाओं को शौचालयों का निर्माण करना भी सिखाया है। इससे उन्हें आजीविका कमाने और आत्मनिर्भर होने में सहायता मिली है। इन गांवों में हम लगातार महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चला रहे हैं। केवल केरल राज्य से प्राप्त 80,000 आवेदन पत्रों में से मठ 15,000 शौचालयों का निर्माण पहले ही कर चुका है और अब भी कार्य अच्छी गति से चालू है। केवल वेस्ट मैनेजमेंट सीखना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं, हमें ये भी सीखना होगा कि क्या करें कि वेस्ट का उत्पादन ही न हो। अम्मा यहाँ एक उदाहरण देना चाहेंगे। सैनिटरी पैड्स में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती और हम जानते हैं कि वेस्ट में कभी कभार 45% तक वेस्ट इन सैनिटरी पैड्स के होते हैं। हमारा मठ सूती कपड़े में लपटे केले के फाइबर से सौख्यम पैड्स बनाने में सफल रहा है। इन पैड्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें उपयोग किए गए पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है। गांव की महिलाओं के लिए ये पैड बनाने का काम उनकी आय का साधन भी बन गया है। केरल राज्य त्रिवेंद्रम से कासरगोड तक लगभग 600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अम्मा की योजना थी कि हाईवे और मुख्य मार्गों पर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर हो। उनकी योजना अनुसार स्वयंसेवक हफ्ते में 2 बार साइकिल पर जाकर इन कलेक्शन सेंटरों से कचरा उठा कर ले आएंगे। इसी बहाने उन स्वयंसेवकों का व्यायाम भी हो जाएगा। इस काम के लिए हमने 6,000 कचरे के डब्बों और 4,000 साइकिलों का ऑर्डर भी दे दिया था। इन स्वयंसेवकों को इस कचरे से कंपोस्ट बनाने भी सिखाया जाने वाला था। इस कंपोस्ट का उपयोग खेतों में खेती के लिए या वे अपने इलाकों में सब्जियां उगाने के लिए कर सकते थे। कुछ घंटे काम करने के लिए इन लोगों को 1,000 रुपये प्रति सप्ताह वेतन भी मिलता। इस प्रकार से ये ग्रुप 2-2 किलोमीटर की देखभाल करते और सारा राज्य साफ सुथरा रहता। किंतु चूंकि हाईवे पीडब्ल्यूडी विभाग का अधिकार क्षेत्र होते हैं इसलिए हम इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर पाए। अम्मा कहती हैं डायबिटीज के रोगी यदि दवाएं लेते रहें लेकिन मिठाइयां भी खाते रहें तो उनका शुगर कभी काबू में नहीं आएगा। उन्हें इस बात की भी जागरूकता होनी चाहिए कि क्या खाएं और क्या न खाएं। अम्मा यहाँ पर एक देती है, अम्मा की अभिलाषा है कि प्रत्येक स्कूल और कॉलेज महीना में 1 या 2 बार स्वच्छता अभियान चलाकर अपने आसपास के 2 किलोमीटर तक के इलाके को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी रखे। रिसर्च के मार्ग पर भी आश्रम की ओर से बहुत कुछ मिला है। मठ की ओर से रिसर्च भी चलाया जा रहा है कि किस प्रकार मच्छरों में जीन इंजेक्ट करने से डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों को पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया जाए। देश भर में जारी इस जन आंदोलन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को अम्मा प्रतिध्वनित करते हुए आपको विश्वास दिलाती है कि स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए माता अमृतानंदमयी मठ हर संभव प्रयास उपलब्ध कराएगा। और मैं माता अमृतानंदमयी जी ने आज समय भी निकाला, हमें आशीर्वाद भी दिए और इस पवित्र कार्य में आपने नई ताकत दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आप इस पवित्र लक्ष्य को पाने में आपका आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी ताकत है। देश के गरीब जरूरतमंद के लिए आप हमेशा उम्मीद और रोशनी की किरण रही है और मुझे तो आपने बहुत स्नेह दिया है। कच्छ में भूकंप से लेकर के आज तक जब भी सेवा का काम रहा आप हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर के आगे आई है। मेरे भीतर गरीबों की सेवा का भाव और मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता ही सेवा के प्रति जो आपने अपना आशीर्वाद दिया है, आपने धन दिया है, आपने समय दिया है, आपके कार्यकर्ताओं को लगाया है, आपने एक पूरे मिशन को एक नई गति दी है, नई ऊर्जा दी है। आपने शौचालय के निर्माण के लिए जो बहनों को मिस्त्री का काम सिखाने का अभियान चलाया है वो सचमुच में
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम है। बहनें और बेटियां स्वच्छता की दूत तो पहले से ही थे, अब आपने स्किल और सशक्तिकरण को भी इससे जोड़ा है। इस प्रयास को विस्तार देने के लिए मैं हमेशा हमेशा आपको प्रणाम करते हुए मैं आज फिर एक बार देशवासियों से कहना चाहता हूं कि देश भर के स्वच्छाग्रहियों के संकल्प और समर्पण को हमने देखा, सुना, जाना, अनुभव किया। कैसा अभूतपूर्व संयोग है। देश के बड़े गणमान्य लोगों के करीब करीब 2 घंटे इस प्रकार से इस कार्य में इस प्रकार से सहभागी होना, उनके अनुभव सुनना, हमें अंदाज आता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में किस प्रकार से स्वच्छता के प्रति 125 करोड़ देशवासियों ने इस आंदोलन को पूरी दुनिया के सामने आज प्रस्तुत किया। दुनिया देख रही है। भविष्य में इस जन आंदोलन के बारे में जब भी लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो आप सभी स्वच्छाग्रहियों का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जिस प्रकार आजादी के लिए जीवन देने वाले शहीदों को आज आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है, आपका भी योगदान उसी आदर और सम्मान के साथ पूज्य बापू के सच्चे वारिस के रूप में विश्व याद करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आप राष्ट्र के नवनिर्माण, गरीब कमजोर का जीवन बचाने और देश की प्रतिष्ठा को दुनिया में पुनः स्थापित करने वाले एक सेनानी बन गए हैं। 125 करोड़ की शक्ति असीम है, अनंत है। हमारा उत्साह उफान पर है, हमारा विश्वास चरम पर है और हमारा संकल्प सिद्धि के लिए है। आप सभी श्रमदान के लिए तैयार और तत्पर हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि मुझे भी आपके साथ कहीं न कहीं श्रमदान के इस काम में जुड़ना है। मैं फिर से एक बार आपकी प्रेरणा के लिए, आपके पुरुषार्थ के लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।